Hare Krishna. So, does anybody remember what we discussed in our last class? Yeah, very good. That's Sthita Pragna. उनका नाम था. English is fine or okay? इसका तकलीफ है बोल सकते हैं. मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है. So we were discussing that Karma Yoga. We saw that benefits of Karma Yoga. Before anybody remember what are the benefits of Karma Yoga? Hmm. Birth and death. No need to worship demigods. No need to rituals. 14 वाला चल रहा है अभी. समाधि. समाधि स्टेज में जाएंगे. मतलब इस कर्म योगा इज बिगिनिंग ऑफ भक्ति. सो कर्म योगा मतलब ज्ञान भी रहेगा इधर, डिटैचमेंट भी रहेगा. तो ज्ञान किसके लिए? सब भगवान का है. तो लोग अटैच, कर्म कांडी अटैच्ड रहते. उनको थोड़ा सा ज्ञान है, स्क्रिप्चर के ऊपर स्क्रिप्चर का ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान, फिर भी वो अटैच्ड रहते. वो सोचते मैं ये शरीर हूँ. कर्म कांडी मतलब ही वांट्स टू एंजॉय द बॉडी, राइट? ही थिंक्स आई एम द बॉडी. तो कर्म योगी मतलब, योगा मतलब कनेक्शन, कनेक्शन विद गॉड. Fifth one is five benefits are fifth benefits going back to Godhead. But now we are discussing on fourth. As soon as Krishna told that fourth one is he attains the samadhi state, means absorbed in Krishna always. उनको कुछ समझता नहीं. Like तुकाराम महाराज हमेशा विठल का उनके ऊपर ही, उनको पूरा ध्यान उधर ही रहते हैं, पूरा डूब गए उनमें. जो भी चल रहा है उनको समझता नहीं. I remember my cousins when they start watching cartoons, whoever calls, whatever happens, they will forget. They don't respond also. So much absorbed. Such absorptions are they are in. So when he said that Samadhi stage, then Arjuna immediately asked some questions. What are their um, attitudes? How their attitudes will be? उसके लिए उन्होंने फिर कितना क्वेश्चन पूछा? Again he asked some questions to Krishna, that what are their general symptoms, how they will talk, how they behave, and how they sit. Second one is how they speak, means how they will react. They won't react for anything. They are you'll be poised. Third one is how he sit. Sit means how he control his senses and mind. Sit मतलब उनका इंद्रिय और मन नियंत्रण में है. कैसे वो नियंत्रण करते, उसके ऊपर चर्चा चल रहा है अभी. So we have to begin from this sloka. 2.58. 57 we discussed already. This is third question. How he controls his senses and mind. आप बोल सकते हैं मेरे पीछे. यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगनीवा सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who is able to withdraw his senses from sense object, as the tortoise draws its limbs with the cell within the cell, is firmly fixed in perfect consciousness. You know what tortoise does whenever some danger comes? कभी भी संकट आ गया, वो कछुआ क्या करते? कितना चीज को अंदर खींच लेते? मतलब दो हाथ, दो पैर और हेड, पांच. पांच चीजें, वैसे पांच इंद्रिय को भी ये लोग. So this Tata is whenever requires, when there is no danger, that time it will come outside. So what he says, whenever this enjoyment things are there, some कोई गलती दिखा रहे, तुरंत आँख बंद कर देते. So they can control their senses, and whenever require, they can engage the senses. Means they control the senses whenever some sense gratification things are there, and they will engage whenever Krishna's service is there.
So these two things are. So same thing Krishna is telling to Arjuna also. You have to engage the senses now. So you should control from these material things. Don't think he told some reasons. Do you anybody remember what are the reason Arjuna told that I will not fight? For this reason I don't fight. Arguments, something or reason he gave. Compassion. उसका पहले no enjoyment, sinful reaction, Varna, Varna Shankara, and indecision. So one should know when to control sense and when to engage. It is not only controlling senses. हमको मालूम कैसे इंद्रिय को नियंत्रण करना है. वैसे हमको पता भी चलना चाहिए कैसे उसको इस्तेमाल भी करना है. Like only negative things. One should not smoke, one should not drink, one should not do this, one should not do that thing. But what should be done? वो पता नहीं. So बाहर लोग यही सिखाते हैं ये नहीं करना है ये नहीं करना फिर क्या करना है उनको भी पता नहीं वो. So that's why one has to control and one should engage also. So both the things one should know. Like a student is wants to study, he will be feeling sleepy. So he should not sleep, he should engage. So one should not eat non-vegetarian means one should eat vegetarian. It is not one should not eat anything. Or one should eat only prasadam. That is उसका भी ऊपर है. There is two things are there. One is Goswami, another one is Godas. Anybody knows meaning? Go means, yeah, very good. Gosala. Another meaning is Go means senses also. Go Mata bolte na. So Go means sensor. Goswami. Swami means master. So one who controls his sensor, he is Goswami. We have 6 Goswamis. Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Sri Jiva Gopala, Dasa Gopal Bhatta. Since 6 Goswamis we have, if you see in our altar, the 6 devotees will be there. They are called Sad Goswamis. So their name title is given Goswami because they have controlled over their senses and mind. Controlled means they don't do things whatever they don't want and they do things whenever they want. That is controlled. I want to study means the mind should be ready now for studying. Now I want to sleep means the mind should be ready. But हमको सोना है मतलब मन इतना घूमता है इतना परेशान करते हैं नींद ही नहीं आ रही है दिमाग ठीक नहीं बोल पढ़ाई करने अभी दिमाग इधर नहीं है. So because there is no control. Actually the mind is controlling us. If we fail to control the mind will control us. Godhas means servant of the senses. So who are we? Godhas. So we should become go boss. Should become boss, not das. Otherwise, we'll be in trouble. What happens? This senses will not be satisfied. कितना भी वो इंद्रियों को देते रहो. कैसे आँख में घी डालेंगे कितना भी घी डालो लेते रहेगा और बढ़ेगा ही वो आग. ऐसे ही वो हमारी इच्छा भी बढ़ते जाएगा. सो हमको लगता है इच्छा को पूर्ति करना है मतलब इंद्रिय तृप्ति एक ही चीज है. But no, the senses will not be satisfied. Our desire also is not limitless. Not limited. It is limitless. Means unlimited our desire. So many desires we have. So what he are trying to say is Krishna is this Sthita Prajnas, they control their senses. If we fail to control the senses, then what will happen? We cannot perform bhakti. This is a impediment. ऐसा ब्लॉकेज हो जाते हैं हमको भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं होता है. ये इंद्रिय हमको खींच के लेके जाते. मंदिर में मत जाओ मूवी जाएंगे कुछ घूमने के लिए जाएंगे. सो मन इधर ही घूमता है मन इंद्रिय. मन बोलते इधर उधर घूमेंगे. सो मन को सुन के हम भी घूमते रहेंगे मतलब हम भी हर शरीर में घूमने पड़ेगा. एक शरीर से और एक शरीर ऐसा घूमते रहेंगे. So we should not listen the mind. We should be at least practice little bit sit up next time. Should have a little control at least. We should begin the control. So it happens by regulative principles. So why there are so many rules? Even in traffic rules are there, college rules are there. Why it is so? Huh? To control our senses. Okay. Yes, they are control students. I think to discipline us. If somebody is not disciplined, then that rules and regulation is given.
in order to regulate. So then they will be disciplined. This- That's why we say disciple. शिष्य बोलते हैं ना, disciple बोलते हैं अंग्रेजी में. Disciple मतलब the words came from discipline. Disciple is disciplined. That's why this rules and regulation is given. So similarly for the senses also, this mind also rules and regulation is there. We will see little what exactly it is. Even in bhakti also we have this regulated life. So that's why we should try to keep our senses always engaged in in Krishna's service, bhakti. Otherwise, once engage himself in, I see Krishna has three energies: internal, external, marginal. We are in marginal energy. This is in Sanskrit, we say Tatastha Sakti. Internal means Antaranga. That is there in spiritual world. ये भौतिक दुनिया में क्या है? बहिरंग शक्ति, एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं. उसका कंट्रोलर कौन है? उसका भी एक कंट्रोलर है इस दुनिया को. ब्रह्मा जी नहीं है, दुर्गा देवी. दुर्गा माता इसको कंट्रोल है. कैसे जेल है, जेल को भी सुपरिटेंडेंट है. माया, करेक्ट, उसको माया बोलते, माया देवी बोलते. सो उन्होंने इंचार्ज है, उस दुर्गा देवी है. सो उन्होंने हम सबको क्या करते, प्रॉब्लम देते ही रहते. उसका काम ही वही है. ही शुड नॉट बी हैप्पी. लिटिल हैप्पीनेस ही गेट्स, देन इमीडिएटली after that there will be problem. So why this problem is created? Then only we will come to Krishna. अरे हमको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है. अभी भी लोग, बहुत लोग सोच रहे हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, चलेगा, दुनिया मतलब ऐसा ही रहेगा. नो, ना थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम है लोगों को पता चलता है. बहुत तकलीफ होता है. एक प्रॉब्लम का दूसरा प्रॉब्लम आते ही रहते हैं. हमको लगता है ये सॉल्व कर दिया मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा. नहीं. सो द प्रॉब्लम विल बी देयर बिकॉज दिस, व्हाट इज दिस वर्ल्ड कॉल्ड? दुखालयम. दुख ही रहेगा इधर, सुखी नहीं मिलेगा. थोड़ा थोड़ा मिलता है सुखी, फिर दुखी मिलेगा. इसको दुखालयम अशाश्वतम. अशाश्वतम मतलब, शाश्वत मतलब क्या है? परमानेंट. शाश्वत बोलते हैं. अशाश्वत मतलब टेम्परेरी. ये धुके मिलेगा, वो भी टेम्परेरी वर्ल्ड है. इसलिए हमको शरीर बदलते ही रहते हैं. That's why one should learn to control the senses like tortoise. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. वो पिछले श्लोक का कंटिन्यूएशन ही है. हमने बताया सेंस को कंट्रोल करना है. कैसे करना है, कैसे कंट्रोल होएगा? हम भी प्रयास कर रहे हैं बट नहीं हो रहे. सो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये श्लोक बताते. दो द एम्बॉडीड सोल, embodied means it is within the body, embodied, the soul is in this body, may be restricted from sense enjoyment. The taste for sense object remains, but ceasing such engagement by experiencing a higher taste is fixed in consciousness. किसको समझाए? What remains? ओके. अभी डायबिटिक पेशेंट है. डायबिटिक पेशेंट को भी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं ना. क्या रेस्ट्रिक्शन है उनको? मीठा चीज नहीं खाना है. तो वो बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हैं. ऐसे मतलब उनको इच्छा चले गया क्या? एक्चुअली उनको ज़्यादा रहते, ज़्यादा कंट्रोल करते कब खाएंगे. कभी कभी इसलिए ज़्यादा खा लेते, फिर बढ़ जाते हैं उनका डायबिटिक्स से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं उनको. तो वही ये बोल रहे हैं, हम भी इतना रेस्ट्रिक्शन के भी कंट्रोल करेंगे भी, फिर वो इच्छा हमारे अंदर से नहीं जाते. फिर कुछ तो एग्जाम आ गया, क्रिकेट चल रहा है, अभी मैं कुछ क्रिकेट नहीं देखूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा. बट मन किधर रहते? तो एटलीस्ट रन दे के आ जाता हूँ ना. तो देखेंगे बैठेंगे, अच्छा चल रहा है, अभी 10 बैठ जाएगा उधर. तो टाइम ऐसा ही चले जाते. एक्चुअली डिसायर इज देयर. That's why we are also trying to control the senses and mind with our full effort, but still the desire is there. So we can control for एक दिन, 2 दिन, 3 दिन कंट्रोल करें. 14 दिन इतना आक्रोश से बाहर आते. लाइक एक बड़ा रबर बॉल ले लो, पानी में डुबाओ, कितना मुश्किल है ना. बड़ा बॉल कितना अंदर आप डुबाएंगे, उतना फोर्स से वो बाहर आते. So, वैसे ही हम भी कितना कंट्रोल करते, एक दिन ऐसे बाहर आते.
लोग गुस्सा को कंट्रोल करते हैं ना, एक दिन, दो दिन, तीसरा दिन, ऐसा बाहर रहते हाथ भी उठाते। Like this, it is very difficult to control the senses. It is not easy. Although we try to control, the desire is there still inside, like that diabetic patient. तो फिर क्या करना है? तो उसके लिए बोला हायर टेस्ट. व्हाट इज हायर टेस्ट? भक्ति. वेरी गुड. सोचा प्रसादम. Of course, this is also one part of prasadam. If you go outside, our restaurant is there, right? Govindas. उसमें लिखा है गोविंदास हायर टेस्ट. नीचे लिखा है. Actually, bhakti is higher taste. But are we experiencing the taste now? Yeah, not fully. There is one book we have. Book name is On the Way to Krishna Consciousness. So like this, we are on the way to Krishna Consciousness. We have not reached yet. हम भी वो रास्ता पर ही है भक्ति का. क्योंकि हमारे कितना श्रद्धा है उतना ही हमको रुचि मिलेगा भक्ति में. हमारे श्रद्धा अभी बहुत कोमल श्रद्धा है. इसलिए बहुत आसान से हम लोग आते कुछ दिन, एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने, दो महीने, फिर बाद में चले जाते. क्योंकि हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है. 7th चैप्टर, 7वां चैप्टर अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोलते चार लोग मेरे पास आते. चार लोग नहीं आते, वो भी बोलते. कौन चार लोग आते बोलते? चतुर्विता भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञानुस ज्ञानी. आर्तो मीन्स स्ट्रेस्ड, डिस्टर्ब. अर्थार्थी मतलब जो लोगों को धन चाहिए, वेल्थ, संपत्ति चाहिए, वो लोग आते भगवान में. फिर आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासुर. जिज्ञासुर मतलब उनको क्वेश्चन है कि दुनिया क्या है, अगर भगवान है क्या, भगवान है कौन है, वैसा उनको अंदर बहुत सारे प्रश्न है. फिर ज्ञानी. ज्ञानी मतलब उनको भगवान को शरण लेना है. भक्ति मतलब थोड़ा थोड़ा उनको मालूम है, उन्हें भगवान, उनका ज्ञान है, फिर भगवान से शरण लेने के लिए आते. ऐसे चार ही लोग आते भगवान के पास. बट एक भक्त ने बोल रहे थे, उसमें पहला पहला व्यक्ति में किसको बताया? स्ट्रेस्ड. अभी इस दुनिया में लोग, सभी लोग स्ट्रेस्ड, सुपर स्ट्रेस्ड, सुपर मोस्ट स्ट्रेस्ड, ऐसे सभी लोग स्ट्रेस में ही है. तो इसलिए भगवान भी, दुनिया भी ऐसे बनाए, लोग इतने दुखी में चले जाते, सुपर दुखी में है लोग, बहुत परेशान में. अब विदेश में देखेंगे सुसाइड अटेम्प्ट रेट देख सकते. लोग इतना परेशान हो जाते, he kills his whole family and he commits suicide himself because of इतना स्ट्रेस. कुछ तो ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस है बाहर. You know, some people writes in T-shirt also, do not disturb me, already I am disturbed. मुझे परेशान मत करो, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान में हूँ. तो जैसे भक्ति करने के लिए हमारे श्रद्धा को बढ़ाना है. अगर हम श्रद्धा को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे श्रद्धा माया के ऊपर रहेगा, फिर बाहर हम चले जाएंगे. फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखद हो सानु दर्शन, हम एक एक शरीर में घूमते रहेंगे. अभी हमको ये मौका मिला है. 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ, मतलब 84 लाख लिविंग एंटिटीज आर देयर. इन दैट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि इस शरीर में हमको मौका है भगवान को, भक्ति को समझ सकते, भक्ति को अभ्यास भी कर सकते, भगवत धाम भी पहुंच सकते. दूसरे कोई कर नहीं सकते. बट इसको हम मिस कर दिया हम लोग. कब कभी हमको फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा पता नहीं. इसलिए हम, और माया में हमको कुछ ज्यादा मिलने वाले नहीं उधर, सिर्फ थोड़ा कंफर्ट मिलेगा बस. बट मन सोचते वो कंफर्ट मिल गया मतलब मैं संतुष्ट बन जाऊंगा. पर कंफर्ट मिलने के बाद और दुखी हो जाते. सो इसलिए ज्ञान भी प्राप्त करना है. ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते करते जाते जाते समय ना, हमको भी वो श्रद्धा भी बढ़ते जाएगा, हमारी रुचि भी बढ़ेगा भक्ति में. अभी रुचि, एक तुकाराम महाराज को कुछ कुछ भी बोलो वो भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि उनका रुचि टॉप लेवल में है. कैसे एक दारू पीने वाले हैं, कितना डांटो कितना भी मारो, पैसा मिल गया तुरंत उनको कहाँ पर जाएंगे, बाटे ला जाएंगे हाथ में कैसे भी, क्योंकि उनका रुचि उधर है. कितना भी बोलेंगे. वैसे ही उन लोगों का भी, वो लोग भी एक अलग नशा में है, ये लोग भी एक अलग नशा में है. तो दे आर ऑल्सो डिवोटीज ऑल्सो इन दी, but means they are also intoxicated. So one comes to that higher taste, then this lower taste will go away. क्या है लोअर टेस्ट? इंद्रिय तृप्ति. क्यों इसको लोअर टेस्ट बोलते? कोई बोल सकते? कैसा ऐसा बोल सकते हैं आप लोअर टेस्ट?
पूरा दुनिया चल रहा है उसके लिए, है ना। धन के लिए कितने लोग चाहिए। वेरी गुड। ओनली ह्यूमन being can understand. This is for not soul. This is for body. Anything else? Temporary. This is good. और कोई ट्राई करेंगे? हाँ, सेटिस पूरा नहीं। ठीक है। एक्चुअली जो भी हम सुख इधर प्राप्त कर रहे हैं ना, वो पशु पक्षी सारे प्राणी करते हैं उसको। आप सोच रहे हैं वो खाते नहीं पशु, वो सोते नहीं, वो बच्चे पैदा नहीं करते। ये सारे चीज हम भी कर रहे हैं, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, मतलब थोड़ा ज्यादा कंफर्ट है। हम भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। तो इसलिए पशु जो करे वही हम भी कर रहे हैं, पर उसको हम सोच रहे हैं यही हमको भी सुख देंगे। और एक चीज, क्यों हम वही कर रहे हैं, मतलब हर जन्म में हम वही किया, वही चीज, लाइक we don't know which body we were in, which are all the body we undergone. We did the same thing, and now after getting this human body also, the same desire is coming. I want to eat in some big hotel. I want to sleep. Some nice arrangement should be there for sleeping. कुत्ता देखेंगे किधर सोएगा, उसको कुछ ऐसा जगह नहीं, घूमते रहेगा, नींद आएगा तुरंत उधर ही सो जाएगा। कार आएगा, कितने हवा जाएगा, आराम से सोते। इनको इतना अच्छा कुशन बेड सब कुछ रहते, नींद नहीं आते, स्लीपिंग पिल लेना पड़ता है। और बच्चे पैदा करने भी सेम चीज, इट इज नॉट समथिंग वेरी अमेजिंग एक्टिविटी। सेम थिंग इज, दैट्स व्हाई इट इज लोअर थिंग्स। दिस इज फॉर लोअर कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज। तो कुत्ता को हायर कॉन्शियस नहीं है, उसका हायर इंटेलिजेंट नहीं है। कुत्ता को कितना भी बोलो, पता नहीं इधर बोलते क्या, हमारे साइड में भी बताते, कुत्ता को कितना भी अच्छा सवर के, मतलब व्हाट यू कॉल, nicely you bath your dog and keep in the middle of the house, still it will go to the gutter only। उसको स्वभाव ही वैसा ही है। उसको गटर को क्या बोलते हैं, गंदी, वो गंदा में ही जाते हो, तो कितना भी उसको स्नान करवाओ, घर को पाउडर उडर लगाओ, फिर भी वो गंदा, वो उधर भी जाके बैठने के लिए उसको अच्छा लगता है। तो बिकॉज उसका कॉन्शियस इतना ही है, उसका लगता ही नहीं अरे मैं इधर हूँ। अभी सुअर क्या खाते, उसको बटर हलवा देंगे खाएगा वो, क्या है सुगंध अच्छा ही नहीं। तो उसका उसका कॉन्शियसनेस बहुत लोअर कॉन्शियसनेस है, इसलिए उसका जो भी कहते वही भी हम करेंगे ना, वो लोअर टेस्ट बोलते हैं। पर हायर टेस्ट मतलब वो भक्ति में है। अभी कितने लोग दिंडी गए, अब गए? दिल्ली नहीं, दिंडी। दिंडी दिंडी, इधर महाराष्ट्र में जाते ना, पंदरपुर। कोई गए? अब गए? पंदरपुर गए, ठीक है। दिल्ली बहुत लोग गए। मैं एक बार गया हूँ। तो दिंडी जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बड़ा तपस्या करना पड़ता है। कम से कम 13-15 दिन लगता है चल के जाने का। सो मैंने कब मंदिर में ज्वाइन किया था, ब्रह्मचर्य आश्रम में, उस समय सबको पहले साल में वो करना ही पड़ेगा, एक तपस्या को। सो आपको कैसे जा, मैंने वारकरीज लोगों को देखा हूँ, उनको कुछ किधर सोना है आपको पता नहीं, खाने के कब मिलेगा किधर मिलेगा क्या कुछ पता नहीं। सो बट हमारे में थोड़ा अरेंजमेंट था, आगे जाके कुछ लोग कुकिंग कर देते और टेंट लगा देते, टेंट में ही सोना था। सो हमारे समय में भगवान बहुत कृपालु हो गई, बहुत बारिश था, सब लोग को बीमार पड़ रहे, कपड़ा नहीं सूखता है, भारी सुखाना है। फिर हमने सीखा था कैसे गाँव लोग कैसे सुखाते कपड़े को, दो लोग ऐसे पकड़ लेते, ऐसे हवा में ऐसे ऐसे करते, तो 15 मिनट 10-15 मिनट में सूख जाते। जो बहुत सारे चीज हमने सीखा भी, कैसे सुखाना है ये चीज। फिर आ, एक बकेट पानी में आपको नहाना है, कपड़े भी वॉश करना है, पानी बहुत कम मिलता है, ऐसे बहुत सारे तपस्या होता है। तो इतना तपस्या क्रिया खाने में, सब में, खाना सोना, जो भी हमको कंफर्ट बोल रहे, ये सब में तपस्या है। और पेट साफ करने के लिए जाने भी मुझे याद आदत ही नहीं है ऐसे बात। पूरा ओपन। तो ये पूरा मुश्किल थे, सो सब कुछ इतने तपस्या किए, फिर गए, हेल्थ ठीक नहीं था, हेल्थ ठीक हुआ, फिर चलते चलते ही जाने। बट एक चीज अच्छा था, भगवान के लिए हम कर रहे, पूरा रास्ता हम जाते कीर्तन करते ही जाते। कीर्तन एकदम जबरदस्त कीर्तन होता है, किताब वितरण करते।
तो उधर जाने के बाद भी कैसे, इतना भीड़ इतना भीड़। लोग, कुछ लोग ना भगवान को दर्शन लेने के बाद ही कुछ प्रसाद लेते खाने के लिए, लेते नहीं। वो वारकरी लोग, हमने लिया। तो उसको भीड़ देख के हम सोचा भी प्रसाद बिना, इसको देख के हमको चक्कर हो जाए, थोड़ा सा प्रसाद लिया। फिर उसको दर्शन लेने के लिए 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। उसको दो तरफ दर्शन देते, मुख दर्शन बोलते और चरण दर्शन बोलते। मुख दर्शन मतलब बहुत दूर से सिर्फ भगवान को यहाँ तक दिखाए, चरण दर्शन मतलब भगवान चरण कभी स्पर्श कर सकते। तो 15 दिन चलना है, इतना फैसिलिटी लिया, सब कुछ किया। तो जाने के बाद कितने समय भगवान को दर्शन मिलता है? 2-3 सेकेंड, इसकी छोड़ दिया। इसके लिए इतना करना है क्या? तो एक्चुअली वही सुखी है, सुख है। बोलते ना, तुकाराम महाराज का एक गाना भी सुनो, तुका मनी माने ये सर्व सुखी, वो बोलते यही सुखी है, दूसरे को कुछ सुखी नहीं। उन लोगों को पूछेंगे भगवान को दर्शन मिल गया, तिरुपति में भी आप कोई गए रहेंगे। कुछ लोग कभी कभी, अभी थोड़ा सिस्टम कर दिया, पहले 1 दिन 1.5 दिन लगता है दर्शन लेने के भगवान। अभी इस महीने में छुट्टी में हो गया है ना स्कूल का, दर्शन तो मुश्किल है। फिर लोग कितने जाने के बाद तुरंत जरघंटी जरघंटी, चलो निकलो यहाँ से, 1-2 सेकेंड हो गया दर्शन। पर इतना करने में भी उसमें सुखी है। स्पिरिचुअल में बहुत करने के बाद थोड़ा मिल जाते। लाइक ध्रुव महाराज, कितने लोगों को मालूम? ध्रुव महाराज, महाराज ध्रुव, सुने रहेंगे। उनका लीला मालूम है, कथा श्रीमद् भागवतम में आते। उनको एक्चुअली ध्रुव महाराज, उनके पिताजी को 2 वाइफ था। तो उनको एक वाइफ के बेटा उन्होंने है, और एक वाइफ का और एक बेटा रहते थे। तो उनको वो पिताजी को वो सेकेंड वाइफ के ऊपर ही बहुत बहुत प्रिय थे उन्होंने। और उनके बेटा उसको गोद में बैठा था, ध्रुव महाराज भी जब बैठने के लिए जाते थे, वो माँ रहा था ना सेकेंड मदर, उनको खींच लेते, आप नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए। ऐसा उनको थोड़ा ह्यूमिलिएट करके भेजते। तो ध्रुव महाराज 5 ही साल थे। उनका इतना क्रोधित, बट क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय मतलब दे हैव दैट द सेम क्षत्रिय ब्लड। उनको गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा हो कि फिर उनको माँ के पास जाते। उनको माँ बोलते किसी के ऊपर भी आप दोष मत देखना है, आपको जो भी चाहिए भगवान को प्रार्थना करो, भगवान देंगे। उनको क्या इच्छा था ध्रुव महाराज को, मेरे नाना जी को भी, उनका नाना जी है ब्रह्मा जी, उनको भी ऊपर ऐसा बड़ा राज्य मुझे चाहिए, उनको भी बड़ा राज्य। सो उन्होंने, उनका माँ उनको सही दिशा दिखाते, जंगल में जाओ तपस्या करो। सो नारद मुनि ने आते, जो नारद मुनि उनको ज्ञान देते, उन्होंने तपस्या करते, फिर भगवान को प्राप्त कर लेते। 6 ही महीने में भगवान को दर्शन मिल जाते उनको। उन्होंने भी बहुत कठोर तपस्या, बट भगवान को देखने के तुरंत उनको जो भी ये भौतिक इच्छा था सब कुछ चले जाए। वो बोलते मैंने, आई वांटेड broken glass but now I got diamond. Broken glass also shine like diamond only if the sunlight falls on it. तो उनका ऐसा लगा, बट भगवान को दर्शन लिया तुरंत उनको कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही लोग इतने तपस्या करके दिंडी में जाते हैं, 1-2 सेकेंड भगवान को दर्शन मिलते हैं, फिर उससे वो लोग खुशी हो जाते। तो भक्ति में भी जो भी मिल रहे हैं ना, इतना हायर टेस्ट वो एक्सपीरियंस करेंगे ही पता चलेगा। दिस इज हायर टेस्ट। बट अदर थिंग्स लाइक अष्टांग योगीस, अष्टांग योगीस बहुत तपस्या करते, ये शरीर नहीं, उसके लिए क्या करते, इवन कुछ रिलीजियंस है वो लोग डेड बॉडी के ऊपर बैठ के तपस्या करते, मैं ये शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं। वो लोग डेड बॉडी के सामने जलाते ना, उसके सामने बैठ के तपस्या मेडिटेशन करते, कैसे ये शरीर जल रहा है, ये शरीर तुच्छ है, कुछ नहीं है शरीर। सो उनका तपस्या बहुत रहते हैं। ज्ञानी लोग ज्यादा ज्ञान के पीछे रहते। तो भक्त लोग कैसे, वो लोग भगवान को प्रसन्न करना है। ये लोग पूरा डिफिकल्टीज मतलब टॉर्चर्स, उनको बॉडी को बहुत टार्चर करते हैं। अष्टांग योगी पूरा देखेंगे, ठंडी से मौसम में पानी में बैठते, गर्मी मौसम में आग को आग बना के उसको बीच में बैठते, सब उल्टा करते हैं। हमको गर्मी मौसम में ठंडा चीज चाहिए, ठंडी मौसम में गर्मी चीज। जस्ट दे वांट टू रियलाइज दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, दे टॉर्चर्स। बट भक्ति इज वेरी स्वीट प्रोसेस, एनीवन कैन परफॉर्म, इवन चाइल्ड कैन परफॉर्म। कभी भी कीर्तन में देखें, छोटे बच्चे भी बहुत संतुष्ट हो जाते, कूदते भागते इधर उधर, तो समझता नहीं क्या चल रहा है, बस बहुत खुशी हो जाते। तो भक्ति सच प्रोसेस वेरी इजीली। बट कौन ऐसे प्रोसेस लेते, जो लोगों को ज्ञान कम है, अष्टांग योगा ये वो
ज्ञानी, ज्ञाना, ये लोग पूरा कम बुद्धि वाले। तो यार कृष्णा इज ट्राइंग टू से दैट भक्ति इज द हायर टेस्ट। सो ये हायर टेस्ट लेने में ये छोटा छोटा टेस्ट से हमारा इच्छा चले जाते। हम भी देखा है जो लोग भक्त बन रहे हैं, कुछ महीने में ही उनको बहुत सारे भौतिक का इच्छा चले जाते, नॉनवेज छोड़ देते। थोड़ा थोड़ा कंद लोसन भी मैं छोड़ दूंगा, हम कुछ बोलते भी नहीं, खुद वो लोग ही छोड़ देते। तो भक्ति का पावर है। बट बाहर दारू, किसी को दारू पीते उनको वो भी चले जाते, स्मोकिंग, सब कुछ बहुत आसान से चले जाते क्योंकि उनका हायर टेस्ट मिल रहा है। प्रभुपाद उदाहरण देते, एक भिखारी है, उनके पास खाने के क्या सड़ा हुआ चीज ऐसा ही रहते, बट उनको ऐसे 56 भोग भगवान के लिए बनाते, 56 भोग बोलते हैं उसको। बहुत सारे पदार्थ रहते, राइस में ही 2-3 राइस रहते, दाल, सब्जी में वेट सब्जी, ड्राई सब्जी, फ्राई सब्जी और पकौड़ी, ऐसे उसको सब मिला के स्वीट, वेट स्वीट, ड्राई स्वीट, ऐसे बहुत सारी भगवान को भोग लगाते, उसको 56 भोग बोलते। वैसा वो भिखारी को 56 भोग देंगे तुरंत इसको फेंक देंगे ना, ये सड़ा हुआ चीज को। So this is kind lower taste, this is higher taste. So in bhakti, there are so many angas are there, so many different items are there. Some likes kirtan, some likes chanting, very few likes chanting. तो बैठना है, सोलह माला करना है, and some likes to hear, they want to attain knowledge. Some likes to serve. कुछ तो इतना अदर पैशन है, सेवा में लगा दो, खुशी से करेंगे। तो जो भी करेंगे ना, after doing that you can perform that experience. Like many people will come so much depressed, stressed, they come and sit in the kirtan for some time, then you see he'll become happy automatically, he will start and started dancing। बहुत लोगों के देखा हूँ, थोड़ा मुंह छोटा करके आके चेयर में बैठते रहते, 1 दिन 2 दिन ऐसे, एक हफ्ते। मेरे को एक बच्चे मालूम ऐसा ही जुड़े था, उन्होंने घर का इतना प्रॉब्लम थे, ही इज जस्ट 8th standard studying, he comes and now he likes kirtan, even class also he missed and run away। So so many varieties are there in bhakti also, but everybody likes prasadam, rarely somebody may not like प्रसाद नहीं चाहिए हमको। कुछ लोग लास्ट में आते, प्रसाद सिर खा के चले जाएंगे, क्लास में पहले मुश्किल है, कुछ तो बड़बड़ करते हैं। So we should understand this material taste is low, material life is low, and whatever we experience in this material body is also lower only. But whenever we engage this material body in spiritual things, then we can attain higher taste. So we should aspire for higher taste. There is one bird called Chataka. In Srimad Bhagavatam, the description comes. The bird will not drink water from down, means anywhere from here. It waits for the rain. Drinks only rain water because this is a very natural and pure water. Rain water is. It doesn't take RO water or. So if the rain is not there, it will die, but it will not take other things. So like this, devotees are only engage the senses only in Krishna service, not in any other things. It should be like this Chataka bad. The restrictions are good only in the beginning stage. We say neophyte, beginning stage. प्लस थोड़ा डिसिप्लिन आएंगे, बाद में हम थोड़ा हायर टेस्ट लोग जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा वो डिसिप्लिन। लाइक अभी हम बोलते हैं लोगों को सुबह उठना है आपको, लोग बोलते हैं कितने बजे, 4 बजे, 4 बजे। स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं एग्जाम के लिए भी हम उठे नहीं। कुछ सिंसियर स्टूडेंट है एग्जाम के लिए उठते नहीं, 4 बजे हम कभी भी हम सोचा भी नहीं। सो लोग आते थोड़ा थोड़ा, अभी मुझे वो आदत हो गया, कैसे भी नींद खुल जाते हैं वो ऑटोमेटिक, क्योंकि थोड़ा हायर टेस्ट मिल गया। मंगल आरती, अगर मंगल आरती नहीं करेंगे थोड़ा कुछ तो मिस किया लगता है, कभी कभी बीमार पड़ जाऊंगा, उस समय मुश्किल होता है सुबह उठने के लिए, सुबह नहीं उठूंगा ना ऐसा कुछ तो अच्छा नहीं लगेगा, समथिंग आई मिस्ड। सो इट विल बिकम हैबिचुअल स्लोली। ओके, यतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रशभं मनः। The senses are so strong and impetuous. Woe is not that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination, who is endeavoring to control them. अभी इस श्लोक से अगले 4 श्लोक भगवान ने बताने वाले हैं। अर्जुन ने एक बार बताया था एक श्लोक में, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये पाप होने वाला है, इसमें पाप लगता है मुझे, तो इसलिए मैं
वन में चले जाता हूँ, तपस्या करता हूँ, जो मिल रहा है उसको लेता हूँ। मतलब उन्होंने एक इनडायरेक्टली बोल रहे मेरा धर्म में नहीं करूंगा। एक्चुअली वन में जाने कौन कौन जा सकते, मतलब ब्राह्मणस जा सकते। जनरली ब्राह्मणस पूरे वन में ही रहते। सो जनरल एक भक्त ने बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे, पहले जमाने में लोग सारे ये भौतिक दुनिया को छोड़ के सब चीज, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वाइफ, चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी, सब छोड़ के जंगल में चले जाते। सो इधर आएंगे ना, क्या होता है, लोग इतने हमको माया में लेके जाते हैं, हमारा चेतना चेतना को गिरा देते। हमने थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रहे हैं, हमारा चेतना को ऊपर लेके आ रहे हैं। ये इंद्रिय तृप्ति अच्छा नहीं, ये चीज अच्छा नहीं, सिर्फ भक्ति अच्छा है, थोड़ा थोड़ा हम ऊपर लेके आ रहे हैं। बट हम तुरंत इन लोगों को संग लेंगे ना, ये भौतिक दुनिया में कभी जॉब ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज में देख सकते हैं, ये लोग क्या देखते रहते हैं, इससे हमारे मन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए लोग वन में चले जाते हैं। वन में कोई नहीं रहेगा, अगर कोई रहेंगे भी पशु प्राणी रहेंगे, और वो हमको मार डालेंगे भी, हमारा चेतना को कुछ डिस्टर्ब नहीं, सिर्फ शरीर ही मरेंगे। पर इधर चेतना को डिस्टर्ब करी, भक्ति को भी नीचे गिरा दी। So they prefer to go to forest. So Brahmanas are allowed to go to do forest and do tapasya, and they live in begging. Brahmanas doesn't do any work. If they get, means they have full faith on Krishna. If Krishna gives, I will eat. Otherwise, no issue. So Satriya ऐसा नहीं, Satriya भी जा रहे, they also may beg, but they will become angry if somebody doesn't give somebody. Begging is not something very, what to say, नहीं, ऐसा कुछ हायर पोस्ट नहीं है वो। बहुत ह्यूमिलिएशन होता है। लोग जाते हैं थोड़ा खाने के, तो लोग हाथ पैर ठीक है ना आपको, क्यों भी ऐसे बोलेंगे अर्जुन का क्षत्रिय है ना, मुझे बोला क्या, किधर है तलवार? वो जीव को काट देता हूँ। सो यू कैनॉट डू दैट। सो नाउ कृष्णा इज टेलिंग दैट देर इज ए डेंजर in not engaging your senses in Krishna service. So what are the dangers? This fourth shloka is going to explain. So here it is given, वो इंद्रिय है बहुत बलशाली है, बलवान है इंद्रिय पूरा। और इम्पटियस, इम्पटियस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? इम्पटियस मतलब हमेशा वो इच्छा रहते, ये चाहिए वो चाहिए, मन में वो इच्छा आते रहते। आई डोंट नो, यू अंडरस्टूड राइट? तो दैट इज इम्पटस। हमेशा वो इच्छा रहते ही कुछ, जीव मतलब कुछ खाना है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और आंखों कुछ ये वो देखना, कोई अच्छा सुनना है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पटस। हाँ, फुलफिल नहीं होने वाला। हाँ, आप कितना भी ट्राई करेंगे भी वो इच्छा पूर्ति नहीं होएगा, और ज्यादा ज्यादा चाहिए वो पूछते रहेगा। So he said the senses are so strong and impetus, oh Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. So अगर आप कितना भी नियंत्रण करो उसको, सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, वो सेंसेस इतना स्ट्रांग है, उसको आपको उसको पकड़ के लेके जाएगा। लाइक few examples, विश्वामित्र मुनि, he was doing कठोर तपस्या, thousands of years he did tapasya, not one day 2 day, years, thousands. But he had that old vasanas, that old experience, that how he was enjoying. Like now today you are doing fasting, you decided मैं अभी फास्टिंग करूंगा, बट उस समय आपको स्मेल आ रहे, पकौड़ा बना रहे, तो क्या होएगा आपको? फास्टिंग अगले बार कर लेंगे। है ना, थोड़ा समय करेंगे। शुरुआत में लोग बोलते हम प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो एक बच्चे ने बोल रहे थे मुझे, प्रभु जी मैंने भी बहुत प्रयास किया, घर जा रहा था, ट्रेन में वड़ा पाव आ गया प्रभु। और ऐसा बहुत सारी ये खा लिया, फिर उसके बाद सब खाने के में चालू हो गया, मैं क्या करूंगा अब क्यों खाया? तो ये एक में चालू करेंगे ना, फिर वो किधर तक लेके जाएगा पता नहीं। So because the senses, we are very weak, we are unable to control the senses. So the impetus, like this, Vishwamitra Muni, he controlled his senses for thousands of years. Then Indra became disturbed. अरे बड़े तपस्वी हो जाएंगे मतलब, फिर मुझे मेरा पोस्ट ले लेंगे ये। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अस्त्र को भेज दिया। व्हाट इज दैट वेपन? अप्सरा, एक मेनका को भेज दिया। सो जस्ट ही हैड द साउंड ऑफ द एंकल बेल, चल चल, क्या बोलते हैं उसको, पायल, पायल, चल चल आया तुरंत। देयर इज सम वुमन। He opened eyes. Apsaras, no need to say, they are very beautiful. And immediately he was disturbed.
एंड देन ही स्टार्ट तपस्या को बाद में करेंगे, लाइक फास्टिंग को बाद में करेंगे, अभी पकौड़ा खा लेंगे. सो लाइक दिस ही वाज डिस्टर्ब्ड एंड देन he lost the tapobal also. Because senses are very, very powerful. Even Ajamila, for him also same thing happened. Actually, why these senses are very powerful? Our desires are very strong. We're trying to control the desire, but we are unable to control because we don't have the higher desire. So we have this lower desire, and then the desires are very strong, and we are trying to control it. We are unable to. So this is like you are swimming against the current of the water. No, the water flow is like this. If you want to swim like this, very easy. ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बट इस डायरेक्शन नहीं करना, पानी भी ऐसा ही भाग रहे हैं, बहुत मुश्किल है. थोड़ा स्विमिंग करने के छोड़ दिया ना, फिर आपको पीछे लेके जाएगा. इसलिए आप स्विमिंग करते रहना चाहिए. नो रेस्ट. भक्ति देर इज नो रेस्ट. बिकॉज माया डजंट रेस्ट. Especially for devotees, it is said Maya will do overtime to allure us. We also should be very careful. That's why the desire, we cannot become desireless. कुछ इच्छा नहीं मुझे, ऐसा नहीं बोल सकते. पर वो डिजायर को उस इच्छा को शुद्धिकरण करना है. अच्छा इच्छा होना चाहिए. एक राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार बोल रहे थे, कुछ इच्छा मुझे नहीं होना चाहिए. आपका क्या इच्छा है? मुझे कुछ इच्छा नहीं रहना चाहिए. वो भी एक इच्छा हो गया. तो बिना इच्छा कोई भी नहीं रह सकते. कुछ तो कुछ इच्छा सबको रहेगा, बट वो इच्छा को शुद्धिकरण करना है. कैसे शुद्धिकरण होएगा? मतलब भक्ति मतलब क्या है? भक्ति भक्ति हम सबको भक्ति बोल देते. व्हाट एग्जैक्टली भक्ति इज? हाँ, सरेंडरिंग टू कृष्णा. दैट इज द लास्ट ऑफ थिंग्स. So bhakti means engaging our senses in the process of bhakti. Like there are Navavidha Bhakti we say. So सारे इंद्रिय, हमारे शरीर, सबको हम भगवान को सेवा में लगाना चाहिए. सुनना है भगवान के ऊपर, भगवान को दर्शन लेना है, भगवान को प्रसाद लेना है, भगवान को नाम को जप करना है. तो हाथ से भगवान को बहुत सारे सेवा करते हैं. भगवान को मंदिर पहुंच सकते हैं, किसी को स्टिचिंग मालूम, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पैर से चल सकते हैं. तो बहुत सारे चीज भक्ति में करें. वैसा करने से क्या होता है? हमारे इंद्रिय शुद्धिकरण हो जाएगा. सो इंद्रिय कारण मन भी शुद्धिकरण होने का चालू हो जाएगा. उसके बाद इच्छा भी शुद्धिकरण हो जाएगा. So then good desire, because we are giving proper input. Whatever you input you give, that according to the mind will react. If you give wrong input, then wrong direction only it will react. तो भक्ति में सारे इंद्रिय को शुद्धिकरण कर सकते हैं. सिर्फ इंद्रिय नहीं, मन को भी. वो इंद्रिय को पूरा सेवा में लगा वो शुद्धिकरण हो जाएगा. भगवान को नाम जप करो, मन शुद्धिकरण हो जाएगा. भगवान को और ये शास्त्र वेद है उसको पढ़ाई करने से बुद्धि शुद्धिकरण होएगा. तो सब चीज आपको शुद्धिकरण हो सकते हैं. तो भक्तों को संग लेने से हमारा ईगो भी शुद्धिकरण हो जाएगा. तो बस सब कुछ हम शुद्धिकरण करने हैं. तो पर्पस ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू purifying oneself. We purifies ourselves by taking bath. That is external. We are talking about internal. Internal, कुछ कुछ आयुर्वेद में इधर तेल लगाते हैं, अंदर जाके वो क्लीन. वो इंटरनल नहीं, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं ना. मन बुद्धि अहंकार. मन हम देखा भी नहीं, सिर्फ सुना है, क्या है भी पता नहीं बहुत लोगों को. बुद्धि कैसा ये पूरा चलता है. सो उसको शुद्धिकरण करना. इधर कुछ गंदा है, कुछ साबुन कपड़े में ब्रश लगाएंगे शुद्धिकरण हो जाएगी. इसको कुछ ब्रशेस नहीं है, तो इसको है एक ही ब्रश. हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इधर घसना है. इधर घसने में मन भी साफ होता है. So it is the good thing is engaging the senses and mind. We have so much service. If you want, somebody wants to do service, so many services are there. So finally, this leader of the senses is mind. So the mind should be controlled. The mind is controlled, then senses cannot, like mind is like steering. The tire will not move, right? I will go this side. No, steering only is there. It's like mind. So if mind is controlled, then senses will be automatically controlled.
So here Krishna is trying to say that should not become Gyani, because Gyani doesn't do any karma. Gyani yogi doesn't have, they don't do any action. उनका एक्शन है खुद का यही चलते रहते, मतलब they don't engage the senses mind in Krishna service. Like Karmi also does, but materially he engages. Bhakta also engages in Krishna service. But ज्ञानी योगी का उनका एंगेजमेंट पूरा क्या होता है? ज्ञानी का एंगेजमेंट मोस्टली मेडिटेशन करते, योगी भी मेडिटेशन करते, मन को थोड़ा रहते, बट पूरा वो लोग एंगेजमेंट नहीं रहते. बट भक्ता पूरा एंगेजमेंट कर सकते. इवन ही कैन एंगेज एवरीथिंग, नॉट ओनली हिज बॉडी, वॉट एवर ही हैज दैट ऑल्सो ही कैन एंगेज. Like somebody has car. So many grahastas now they use us. Like now this month we say book distribution month, because this December month Prabhupada has made everyone should distribute books, Srila Prabhupada books. And this Bhagavad Gita especially because the Bhagavad Gita knowledge is given in this month only. This Ekadasi day will come. Huh? Jayanti. Acha. So that Ekadasi day only this Bhagavad Gita was given by Krishna to Arjuna. So this month everybody does. So devotees they will come and do the service. They will take the books and distribute. Somebody has car, they will give the car. You can take it for distribution. They can load the books in the car and they take the car. So in bhakti, there is not something like we cannot engage. Everything can be engaged. Even children's goes and distribute. People will become very much attracted. Even though they don't know what is the book, but they will take because small child is doing. General one boy was there, Damodar. He is now he went to US. So he distributes so much books. He takes small bag and small books only he will take. He will go and 5-10 minutes, looking very cute, and he will go and tell they will take. So everyone, everything can be engaged in bhakti. And by performing bhakti, one attains highest perfection. तो ज्ञानी योगी वो लोग मैक्सिमम ब्रह्मन बोलते. ब्रह्मन मीन्स निराकार, ब्रह्म ज्योति बोलते ना, लाइट यू माइट हैव सीन. दे कैन अटेन दैट लेवल ओनली, बट भक्ति टेक्स अस टू above that also. We will discuss that. What is that? Even above mukti also. We know until liberation, right? भक्ति, बट इसको भी ऊपर हमको मिलता है, प्रेम बोलते हैं उसको. But in order to do that, we cannot control our senses. Here, the senses can be controlled by only doing bhakti, by engaging the senses in the service of Lord. This one sloka will come. This is from Narada Pancharatra. Sarvapadi vinurmuktam tatparatvena nirmalam risikena hrisikesa sevanam bhakti uchyate. So bhakti. Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the master of all the senses. When the spirit soul renders service unto the Supreme, there are two side effects. One is freed from all material designations. He is telling side effect by doing this. And another is one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord. By engaging our senses in material things, our senses are getting more contaminated. वो इच्छा और बढ़ते ही जाते, और करना है और करना है, और धन चाहिए. तो इसके पीछे ही रहते. बट भगवान को सेवा करने से शुद्धिकरण होता है और संतुष्ट ज्यादा मिलता है. इधर भी लोग ज्यादा सेवा करते ही, पर उससे क्या होते, भगवान भी संतुष्ट हो जाते, हम भी संतुष्ट हो जाते. भगवान मूल है, पेड़ है, पेड़ का मूल है ना, वो भगवान है. अभी मूल में पानी छोड़ेंगे पूरा पेड़ शक्ति मिल जाते ना, पेड़ फूल पत्ता सबको शक्ति. वैसा ही just by serving Lord we will become happy. Here it is said Hrishikesha, Hrishika, Isa. Isa means Isa, controller we say, or master. Rishi means senses. He is the controller of all the senses. Just engage your senses in the service of the Lord, your senses will be controlled. So that's why Hrishikesha. Hrishikesha Sevanam. Engage the senses in the master of the senses in his service, your senses will be purified. This was Narada Pancharata one sloka. It is said. So tani sarvani samyamya yukta sitamatpara vasehi yasyendriyani tasya prajna pratistitah.
One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. So, who has steady intelligence? Given here. This another thing Krishna wants to tell. This was same thing. He said only bhakti can control the senses and mind, not our own way of practicing. Like already we saw the example of Viswamitra Muni. Viswamitra Muni was doing such a tapasya like yogi, sitting and 60,000 years doing tapasya, sitting and so much. Even you see, Hiranyakashipu also did tapasya. He also did for so many years. Such a very vigorous तपस्या कठोर तपस्या इन्होंने किया पर सब कुछ करने के बाद उनको क्या हुआ मटेरियल एंजॉयमेंट करने के लिए ही मन गया क्योंकि उन्होंने किसके ऊपर किया तपस्या ब्रह्मा जी के ऊपर किया तो हम तब तक भगवान कृष्ण के भक्ति नहीं करेंगे हमारे मन कंट्रोल नहीं होने वाले अभी कुछ लोग शिव जी के ऊपर भी किए कोई उदाहरण आप बोलेंगे रावण है भस्मासुर है गुड एग्जाम्पल उन्होंने भी कितने तपस्या बहुत बहुत कठोर भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुआ बल्कि हाथ काट लेते पैर काट लेते फिर गला काटने के लिए आते फिर शिव जी प्रकट होते तो फिर जाए वो आने के बाद भी उनका इच्छा पूर्ति नहीं हुआ फिर भी मेटेरियल एंजॉयमेंट ही करते थे और जो लोग भक्ति करते हैं उनको देखेंगे मेटेरियल एंजॉयमेंट उनको छोड़ के चले जाते दिस द पावर ऑफ द भक्ति टुवर्ड्स कृष्ण भक्ति मीन्स ओनली वी कैन डू टू कृष्ण ओनली so the analogy is given how the fire burns everything like this the desires will be burnt these yogis are they are trying to meditate on paramatma who is there inside. If they don't meditate on Krishna, Paramatma is Krishna only, Janardana. This name of this Paramatma is Janardana. So if you don't meditate on Paramatma and something meditate on some bulb, वो भी है कुछ कुछ मूवमेंट है बल्ब लगा देते उसके ऊपर मेडिटेट करते बैठते so so that desire is not going to be vanished it will increase only so by doing meditating on Janardhan this Paramatma there the desires will be burnt away. That's why in yoga also they meditate on Paramatma, who is Vishnu only. So here one word is given Mat Para. Means Krishna is telling Mat Para means unto me. So this is the first verse Krishna is telling do bhakti unto me. कुछ लोग बोलते हैं ना कृष्णा एक व्यक्ति है ऑर्डिनरी व्यक्ति है नहीं ऑर्डिनरी व्यक्ति मतलब क्यों बोलेंगे और ऑर्डिनरी व्यक्ति मतलब क्यों इतना भगवत गीता का इतना फेमस हुआ many person wrote books. It is not that books may be famous for 100 years, 200 years, that much only. This is how many years old? Minimum 5,000 years. More than 5,000. द्वापर युग कलयुग चालू की 5,550 तक हो गया अभी. Still it is famous. Still people are trying to understand, they are unable to understand. So that's why he's telling directly unto me. So one who has steady intelligence, he engages everything in bhakti. So there is one Srimad Bhagavatam example is there. सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर वासांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनिदसो श्रुतिम चक्कारुच्युत सत्कतोधये. This shloka is told by Ambarish Maharaj, Srimad Bhagavatam. It is said that how he engaged everything in bhakti. This you can read this. King Ambarish Maharaj fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Mind is fixed on Lord's Bhagavan ko charan mein. And he engaged his words in describing the abode of the Lord. Like now we are engaging the words in describing about Lord. His hands in cleansing temple, his ears in hearing the pastime of Lord, eyes in seeing the form of the Lord, body is touching the body of the devotee. Like भक्तों को पैर को स्पर्श करते ना मतलब सन्यासी लोगों को. His nostrils in smelling the fragrance of the flowers offered to the lotus feet of the Lord. इधर भी भगवान को फूल अर्पण करने के बाद उसको हम सुनते. His tongue in tasting the tulsi leaves offered to him, even prasadam. His legs in traveling to the holy places. चल के जाते आजकल फ्लाइट में जाते लोग. Where his temple is situated. His head is offering obeisances. हम स्पर्श करते ना शरीर को. And his desire is fulfilling the desire of the Lord. He doesn't have any desire. What is his desire? And his desire is
Desire in fulfilling the desire of the Lord. His only desire is fulfilling the desire of the Lord. He doesn't have any personal desires. Whatever Lord wants, that only I will do. And all this qualification made him fit to become a Matpara, devotee of the Lord. So this is where one has to engage his. लोग डरना मत, अरे सब कुछ करने हम जॉब के लिए जाना है कि नहीं, ये करते रहेंगे मतलब क्वेश्चन में आ रहे. यस ऑफ कोर्स, that is also for the service of the Lord. Like we have family, we have to maintain it also. Like Arjuna, we cannot say. According to his dharma, he has to work. According to one's occupational duty, he has to do. Like he has parents, he has to take care. He has family, children, wife. He has to take care. For that, he has to work. Not अनावश्यक, ज्यादा नहीं होना चाहिए. फिर वही करना है, भक्ति भी भूल जाते, उतना करते करते भक्ति भी नहीं करते. So our main thing should be bhakti. It should support the bhakti. How much it support, that much only we have to do. Not too much engrossed in it. Next two sloka says that how one falls down. This very important sloka. I will just show you, but next week we will discuss about it. How the fall down, how it occurs. A person is doing bhakti or anything, and after sometimes why he is leaving bhakti, and how the process of this fall down happens. So there is this two sloka explains. Dhyayato visyan pumsat angate supajayate sanga sanjayate काम काम क्रोधा जायते. ध्यायतो, ध्यान मतलब क्या है? ध्यान से सुनो बोलते हैं ना. ध्यायतो मीन्स मेडिटेशन. ध्यान कर रहा हूँ बोलते हैं ना, ध्यान योगा. सो ध्यायतो विषयान पुंस, मतलब विषय है, किसके, कौन सा विषय है? मेटेरियल विषय. उसके ऊपर कोई ध्यान कर रहे. अभी किसके ऊपर हम ध्यान करें, उसके ऊपर हम क्या होएंगे, आसक्ति बढ़ जाएगा. अभी मुझे एक BMW कार लेना है, इच्छा प्रकट हो गया, तुरंत पूरा ध्यान उधर ही जाएगा, लेना है लेना है. कितना मैं उसके ऊपर ध्यान करता हूँ उतना मेरा आसक्ति बढ़ता है उसके ऊपर. और कितना सुने सर. तो उसके बाद क्या होता है, उसको अटैचमेंट, मतलब फर्स्ट इज कंटेम्पलेशन, देन अटैचमेंट, देन लस्ट. इसको हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा कैसे भी, हुक और क्रूक, इस ना. So that is lust. So in lust there are two problem is there. If it is fulfilled or unfulfilled, still problem. If it is fulfilled, I need more. If it is unfulfilled, one becomes what it is given. If lust unfulfilled, anger arises. This is leads to next sloka. ध्यायते उसमें संगते सुबह संग संगायते काम काम क्रोधात. काम से क्रोध उत्पन्न होता है. तो क्रोध से क्या क्या फिर उत्पन्न होने वाले हैं? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रंशात बुद्धिनाशोत, बुद्धिनाशोत सत्तु कथम प्रणश्यति. उसको फॉल डाउन बोलते हैं. सो गुस्सा हो गया मतलब डेल्यूशन, मतलब उनका क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं भी पता नहीं. कुछ लोग गुस्सा में टीचर को भी मार देते, पिताजी को भी मार देते है ना. पता नहीं गुस्सा में कुछ तो कर दिया मैं, उनको भी पता नहीं, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है. और बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, भूल जाते. मेरे पिताजी कुछ नहीं देखते, कोई भी पीछे सामने है, पुलिस को भी लेके मार देते. Then because of that, their intelligence is lost. If intelligence is lost, then fall down occurs. You can remember Bharat Maharaj past time. This Bharat Maharaj is there in Srimad Bhagavatam. Next time we will describe that, how he went to forest to do tapasya. He became attached to deer, and then slowly his fall down started. So this is how one's fall down. So we should not, the moral is we should not contemplate on material things so much. We can contemplate on spiritual thing. Even you can contemplate what is there in prasadam. That is also no issue. कुछ तो सुगंध आ रहा है वो भी ठीक है, but not on material things. So if you contemplate, then attachment will increase. Generally, you see boy and girl. If a boy likes a girl, if a girls like a boy, their whole contemplation on that only. That will be the main object. The more they contemplate, the attachment increases. Then when the parents say, no, you should not marry, he's from so-and-so background, we don't want. Damn, that's it. They will become angry. Anger will increases. कोई नहीं चाहिए मुझे, parents भी नहीं चाहिए. So this how. But are they happy? Rarely some are happy, even after marriage, such as things. Some are still
some difficulty they have to face. Okay, we will discuss next week about this little vividly. So if you have any question, now you can ask. Otherwise, we will chant one round. Any question? No. Okay. Srila Prabhupada ki jai.